हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जितने भी बच्चे क्लैट 2022 में अपियर करने वाले हैं या एलेट या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में प्रिपेयर करने वाले हैं, पर्टिकुलरली जीके को लेके परेशान है या जीके फैक्ट्स को लेके परेशान है कि दैट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज, इम्पॉर्टेंट पर्सनस हु वेर इन द न्यूज़, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस विच वेर इन द न्यूज़, इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो इनको लेके एक जीके फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो क्लैट या एलेट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, सो इसको लेके एक परेशानी होती है। तो उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए, आपके उस परेशानी को डायरेक्टली रिजॉल्व करने के लिए, वी हैव कम अप विद द वीडियो विच इज रिलेटेड टू important GK facts for CLAT 2022. In this video, we are going to discuss important facts which appeared in the news in 2021 and 22. So, इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो के देखने के बाद the problem which you have in remembering the names of ministers, remembering the name that who was chief of NATO, who was chief of International Atomic Energy Agency, why Pochampalli was in news, why Dholavira was in news, ये सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी आफ्टर दिस वीडियो। सेकेंड इज दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, go through this video again and again and please make a note of all the important facts mentioned here, which is tremendously going to help you in your CLAT, ALET and other law entrance exam preparation. So friends, before I start, we at Manu Law Classes, we have already launched our 1-year course and crash course. You can enroll with us by calling us at 9971 444 also by visiting our website www.lawentranceindia.com. So you can visit to us for crash course for CLAT, ALET and DULLB, and also for 1-year course for all these above exams. Now let's start with the video. The first and very important is important ministers. कभी कभी होता है कि एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल क्लैट 2021 में ही पूछ लिया था कि दैट हु इज द हेल्थ मिनिस्टर. ओके, then various initiatives have been taken by important ministries and for that some ministers are in news. उसके बाद कुछ मिनिस्ट्री ऐसे हैं जो 2021 में ही जिनका गठन हुआ था, they were formed in 2021, so those ministries are also important. फिर उसके बाद there was a cabinet reshuffle in May और बहुत सारे मिनिस्टर्स चेंज हो गए थे. सो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए नाउ वी हैव दिस new name of new set of ministries. So let's start with the ministers. The first is our prime minister. We definitely know our prime minister is Shri Narendra Damodar Das Modi. Then Union Minister of Home Affairs and Union Minister of Cooperation is Amit Shah. So Amit Shah is both Union Minister of Home Affairs and Union Minister of Cooperation. ये जो Union Minister of Cooperation है, ये एक नई मिनिस्ट्री है. पहले ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पार्ट हुआ करता था. तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पूरा नाम था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड कोऑपरेशन. बाद में कोऑपरेशन को हटा के एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई एंड इट इज़ हेडेड बाय अमित शाह. द नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ओके, so Union Minister of Commerce and Industry as well as Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, both are handled by same person and he is Piyush Goyal. ओके, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक तो आप पहले देखिए कि हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का FTA फाइनलाइज होने वाला है. उसके बाद UAE के साथ हमारा FTA और फाइनलाइज हो गया है एंड इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 May 2022. अपार्ट फ्रॉम दैट, if you will see that India recently crossed its $400 billion export target for the last financial year. So इन सारे reasons की वजह से this ministry becomes important. The next is the COP26, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो ग्लासगो में हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने अपना 5 क्लाइमेट गोल्स दिया था, जहाँ पे इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि द नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट ऑफ इंडिया इज़ 2070. चाइना का वो 2060 है, बाकी कंट्रीज़ का वो 2050 है. देन देयर वाज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट according to which Madhya Pradesh is the state with the largest forest area. So because of this, the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change becomes important.
उसके बाद ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ था फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वाज आल्सो इन न्यूज़. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स दिस two ministries is becoming important, and this both ministry is headed by Shri Bhupendra Yadav. Then the next one is Union Minister of Finance. She is Miss Nirmala Sitharaman. Then Union Ministry of Women and Child Development. हमने कोविड ऑर्फन्स के बारे में किया था 2021 के मई जून में जब सेकेंड वेव आया था. फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने कोविड ऑर्फन्स के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए स्टेट लेवल पर स्कीम्स भी निकाले थे. देन फिर यूनियन गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन पास किया है कि HDRF का फंड यूज़ होगा फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू फैमिलीज जिनके फैमिली मेम्बर्स दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19. सो ऑल दिस मेक्स दिस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में रहे थे. वन इज़ PM पोषण स्कीम, देन PM वात्सल्य स्कीम, देन वी हैड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस मिनिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक इस मिनिस्ट्री का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक प्रोग्राम है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. इस स्कीम में ₹5,000 कंट्रीब्यूशन दिया जाता है टू द वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट हु हैज़ गिवन बर्थ टू द फर्स्ट चाइल्ड फॉर द पार्शियल वेज कंपनसेशन. सो दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? शी इज़ मिस स्मृति जुबिन ईरानी. उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस साल. हमारे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों से रिलेटेड इस बार एक्सरसाइज भी हुए हैं. एक्सरसाइज मिलान हुआ है इस बार. मलाबार एक्सरसाइज जो हम क्वाड के साथ करते हैं वो तो चलता रहता है. बाद में डिफेंस डील्स हुए हैं हमारे रशिया से. हमने AK-203 असॉल्ट राइफल का डील किया ही था. उसके बाद S-400 मिसाइल हमने लिया हुआ है. सो बिकॉज ऑफ दिस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमेशा न्यूज़ में रहता है. उनके मिनिस्टर का नाम आपको हमेशा याद होना ही चाहिए. सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज़ श्री राजनाथ सिंह. द नेक्स्ट इज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस अनुराग ठाकुर. नॉर्मली ये नेम जो है बच्चे याद नहीं कर पाते या इनको साइडलाइन कर देते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. द नेक्स्ट इज मैती. सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही कहते हैं मैती. ठीक है. सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, वो इसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. ओके. सो दिस मिनिस्ट्री इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज इस बार हुए थे. प्राइवेसी इश्यूज़ के बहुत सारे आए थे जहाँ पे आपने पुट्टास्वामी जजमेंट के बारे में पढ़ा होगा. सो दिस मिनिस्ट्री इज़ क्वाइट इन द न्यूज़. सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अलॉन्ग विद दैट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बोथ आर हैंडल्ड बाई श्री अश्विनी वैष्णव. अर्लियर ही वॉज एन IAS ऑफिसर इन ओडिशा. देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. एक जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेली हिंदू एनालिसिस में वो जानते हैं चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में. सो दिस इज़ अ चार धाम प्रोजेक्ट. सो चार धाम प्रोजेक्ट इट इज़ इन उत्तराखंड. ओके. दिस इज़ द रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट. सुप्रीम कोर्ट में ये इशू चला था दैट दे हैव टू वाइडन द रोड्स. सो सुप्रीम कोर्ट फेवर्ड इन passed the judgment in favor of the government, and now there will be widening of Char Dham project. Okay. So this ministry is again very important. नितिन गडकरी. फिर अगर हम PM गति शक्ति देखें, so PM गति शक्ति में भी this ministry is going to play a very crucial role. The next is Union Minister of Agriculture नरेंद्र सिंह तोमर. पूरा पिछला 2 साल farmers issue से पूरा it was a burning issue. Farmers issue 3 laws were passed. After that in November 2021 Farm Laws Repeal Bill was passed in the Parliament, repealing all those 3 laws which were passed earlier in 2020. So this name is very important, Narendra Singh Tomar. Then Union Ministry of Tourism, Culture and Northeast Development, G. Kishan Reddy. ये आप नहीं भूलेंगे. The next is Union Minister of Law and Justice, Kiran Rijiju. The next is Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal. He was earlier the Chief Minister of Assam. Then Union Ministry of Jal Shakti is Gajendra Singh Shekhawat. So these are the list of important ministers for your CLAT 2022.
द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेड्स। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ के बारे में पूछ लेता है। कब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम क्लैट पैटर्न को देखें सो क्लैट का एक खास फोकस होता है इकोनॉमिक्स के सेक्शन पे। ओके, फिर जो नए इंस्टीट्यूशंस इस बार एस्टेब्लिश हुए हैं या जो न्यूज़ में थे उनके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है वो आता है इनके चीफ के बारे में कि कौन किसका चीफ है। अगर आप ओलेट या एलेट के एग्जाम्स में भी देखें तो चीफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बट सबको एक साथ याद रख पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर क्लैट एंड एलेट एस्पायरेंट्स। सो आई हैव compile this in a single slide so that you will remember always. So रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं he is शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास is also the ex officio chairman of monetary policy committee of India, शक्तिकांता दास। देन अभी ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरमैन, सेबी जिसे कहते हैं। सो शी इज़ मिस मधावी पुरी बुच। पहले जो सेबी के जो चेयरमैन थे वो थे अजय त्यागी। तो आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही रिसेंट अपॉइंटमेंट है मिस मधावी पुरी बुच का एज अ सेबी चेयरमैन। उसके बाद 2021 में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाइनेंशियल एंटिटी सेटअप किया था गवर्नमेंट ने जिसको हम कहते हैं बैड बैंक। ओके, बैड बैंक। इस बैड बैंक का फॉर्मल नाम क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड या NARCL। ओके, सो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि NARCL हाउ इट विल फंक्शन। NARCL जब कोई भी एसेट PSU बैंक से लेगा जिनका ओनरशिप इस कॉरपोरेशन में 51% है, तो पहले तो उनको 15% अप फ्रंट पेमेंट करेगा और 85% ओके विल बी पेड आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ एसेट। सो इसके जो चेयरमैन हैं प्रदीप शाह हैं और जो CEO हैं वो हैं पद्म कुमार माधवन नायर। सो अगेन यहाँ आप अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं पद्म कुमार माधवन नायर और जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रदीप शाह। फिर एक और बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड एज इंडियन डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड IDRCL। तो इसमें भी बहुत रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, दैट्स वाई इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज संजय सिंह and the chairman is Divakar Gupta. The next is Telecom Regulatory Authority of India TRAI। हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज हम 5G ट्रायल्स कर रहे हैं, अभी 5G सर्विसेज रोल आउट होने वाली है हमारे कंट्री में। सो दिस बॉडी बिकम्स इम्पॉर्टेंट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो दिस इज हेडेड बाई PD वघेला, ही इज़ अगेन एन IAS ऑफिसर ऑफ गुजरात काडर। उसके बाद हम नीति आयोग पे आते हैं। नीति आयोग, the full form of NITI is National Institute for Transforming India. So NITI Aayog, it has replaced an erstwhile Planning Commission. Planning Commission. Now when was NITI Aayog established? बहुत ही सिंपल डेट है रिमेंबर करने के लिए, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, अब वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का? ये अक्सर हम ध्यान नहीं देते पढ़ते वक्त। सो जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। बट फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि फिर CEO कौन है और वाइस चेयरमैन कौन है। सो CEO इज़ अमिताभ कांत, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ अमिताभ कांत एंड वाइस चेयरमैन इज़ डॉक्टर राजीव कुमार। द नेक्स्ट इज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन लखनऊ। सो see, most of the banks they have headquarter in Mumbai, but SIDBI is the bank whose headquarter is in Lucknow and the chief of this bank is Siva Subramaniam Raman. Siva Subramaniam Raman. The next is IRDAI, Insurance Regulatory Authority of India. Sorry, Insurance Regulatory Development Authority of India, IRDAI. इनके जो चीफ हैं that is देबाशीष पांडा। देवाशीष पांडा। नेक्स्ट इज नाबार्ड, एन एपेक्स बॉडी फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1982। सो द चीफ ऑफ नाबार्ड इज गोविंद राजुलू चिंताला। गोविंद राजुलू चिंताला। ओके, नाउ एक अपॉइंटमेंट और है फ्रेंड्स जो हमें ध्यान देना है। इसरो के चेयरमैन कौन है? ठीक है,
So it is S. Somnath. S. Somnath. You can write it down. Okay, S. Somnath. अब हम फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और उनके हेड्स कौन हैं। अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कभी कभी ओलेट में और एलेट में पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल क्लैट में यू हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम सीधा आया था। ठीक है, सो ऑल दिस बॉडीज बिकम्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देयर आर सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज which are very important, and we normally while reading the newspaper we skip the names. So here let's do it again. So who is the Attorney General of India? So it is K.K. Venugopal, Attorney General of India. The next is who is Comptroller and Auditor General of India? Comptroller and Auditor General of India. So इसको हम CAG कहते हैं. So the Comptroller and Auditor General of India is गिरीश चंद्र मुर्मू. The next is ये recent appointment है, काफ़ी recent, so it becomes important. So this is called as Controller General of Accounts. So Controller General of Accounts जो है it comes under Union Ministry of Finance. So the Controller General of Accounts is Miss Sonali Singh. Then the next is who is the Chief Election Commissioner of India? So the Chief Election Commissioner of India is Suresh Chandra. Then National Human Rights Commission के चेयरपर्सन कौन है? सो ही इज जस्टिस रिटायर्ड अरुण कुमार मिश्रा. द नेक्स्ट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनका अपॉइंटमेंट 2020 में हुआ था, इज यशवर्धन कुमार सिन्हा. प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आरटीआई एक्ट इंडिया में कब पास हुआ था. व्हेन वाज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, when was right to information act passed in India? This is very important. The year is very important. Two acts के year काफ़ी important होते हैं आपके एग्जाम के लिए. One is RTI, the next is right to education. Okay. The next is Chief Vigilance Commissioner. So who is the Chief Vigilance Commissioner? CVC of India. So the answer is Suresh N. Patel. The next is National Commission for Backward Classes. ये इस साल काफ़ी important होने वाला है. Why? Because Maratha OBC reservation, बनियार कोटा रिजर्वेशन, देन ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया था अबाउट EWS कोटा, दैट हाउ द ₹8 lakh इनकम हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर EWS कोटा बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया. इसमें पांडे कमेटी सब आए थे. सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इट इज़ द रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एडेड बाय द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले से ये था, ये पहले स्टैट्यूटरी बॉडी था, नाउ इट हैज़ बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट इज चेयर्ड बाय भगवान लाल साहनी. द नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मिस रेखा शर्मा. द नेक्स्ट इज अगेन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इट इज प्रियांक कानूंगू. देन वी हैव नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, विजय संपाला. एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देन हर्ष चौहान. देन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन कौन है? सो इकबाल सिंह लालपुरा. उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन कौन है? देन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल. जस्टिस आदर्श कुमार गोयल. सो फ्रेंड्स, दिस आर द नेम्स ऑफ बॉडीज एंड हेड्स विच हैव बीन इम्पॉर्टेंट. ये इस साल के न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं. ओके, सो रिमेंबरिंग दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, बट उनके हेड, उनके चीफ कौन है, अक्सर हमको उन्हें याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, उनको रिमेंबर करने में भी बहुत दिक्कत होती है. सो अगेन लेट्स गो थ्रू इट. सो फर्स्ट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन श्रीलंका. So International Monetary Fund is the international body which was set up by the Bretton Woods Agreement. Bretton Woods Agreement. Okay. So this is a body which helps the member countries during balance of payment crisis. So Bretton Woods Agreement में दो institutions बने थे, International Monetary Fund
एंड वर्ल्ड बैंक, इसीलिए इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, शी इज़ क्रिस्टिना जॉर्जिवा। उसके बाद जो डेप्यूटी MD हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एन इंडियन इज देयर, सो शी इज़ गीता गोपीनाथ। About Geeta Gopinath, she was first chief economic advisor to International Monetary Fund. After that, she was appointed as the first deputy managing director of IMF, Miss Geeta Gopinath. Then World Bank के president David Malpass. इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट इज that we are reading about Iran nuclear deal. So where this Iran nuclear deal is negotiations are taking place, so they are taking place in Vienna. Why Vienna? Because Vienna is the headquarter of International Atomic Energy Agency, and who is the DG of International Atomic Energy Agency? Rafael Grossi. Then recently Russia has been suspended from the United Nations Human Rights Council. सो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? फेडेरिको विलेगास। द टोटल मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल इज 47। इट हैज़ रिप्लेस्ड अ बॉडी, पहले एक बॉडी थी विच वॉज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उसको रिप्लेस करके नाउ इट इज़ अ न्यू बॉडी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। द नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है बिकॉज ऑफ द अफगानिस्तान क्राइसिस, then this Russia-Ukraine crisis. So this name is very important. United Nations, who is the United Nations High Commissioner for Human Rights? So she is Michelle Bachelet. The next is World Health Organization. क्यों important है आप जानते ही हैं, because of COVID-19. Then many vaccines from India they have got emergency use license. अभी recently World Health Organization ने कोवैक्सीन को फिर से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेक करने के लिए कहा है बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम ब्राज़ील। सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगेन इज द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा। सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज टेड्रोस एधेनोम घेब्रेयेसस। ही इज़ फ्रॉम इथियोपिया, टेड्रोस एधेनोम घेब्रेयेसस। देन अगेन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? आप जानते हैं कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दे वर डिमांडिंग ट्रिप्स वेवर। व्हाट इज ट्रिप्स? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ट्रिप्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सो ट्रिप्स इज रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ये वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए ट्रिप्स वेवर मांग रहे थे। कौन से वैक्सीन में? उस वैक्सीन पे विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन US एंड यूरोप। अगर ट्रिप्स वेवर इनको मिल जाता सो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका कुड हैव मैन्युफैक्चर्ड दोज वैक्सीन इन देयर होम कंट्री। बट नाउ रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ डील बिटवीन दिस कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन वेयर दे आर नॉट गोइंग टू गेट ट्रिप्स वेवर बट दे आर गोइंग टू गेट कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ओके, चलो। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन है? DG नगोजी ओकोंजो इवियाला। अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज द बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1995 आफ्टर उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर मरक्कश ट्रीटी। ओके, चलो। उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस जब से चल रहा है तब से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फॉर्म्ड इन 1949 एंड हेडक्वार्टर्ड इन ब्रसल्स बेल्जियम हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इनके चीफ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका हम नाम कभी कभी नोट नहीं करते हैं, जबकि न्यूज़पेपर में ये 5-6 बार आके गया हो। सो द चीफ ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज जेंस स्टोल्टनबर्ग। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम नाटो ही इज़ गोइंग टू जॉइन बैंक ऑफ नॉर्वे। देन यूरोपियन यूनियन कमीशन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यूरोपियन यूनियन हैज अनाउंस्ड €1 billion humanitarian assistance to Afghanistan. Then
European Union Commission was also important during Brexit, and then when this Russia-Ukraine crisis is going on, so this this regional political and economic union of 27 countries of Europe has become very important. In this, European Union Commission is the executive body of European Union. उसकी जो president है, she is Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Then United Nations Secretary General कौन है? So he is the former Prime Minister of Portugal. He is Antonio Guterres. The next is who is United Nations General Assembly President. Recent appointment है, इसके लिए important है. Second, that this body has remained very important from Afghan crisis to Russia-Ukraine crisis. Recently अभी Russia-Ukraine crisis से related United Nations General Assembly में पास हुआ था एक resolution जिसमें इंडिया ने abstain किया था. So this General Assembly is very important, and the President of General Assembly is the former Foreign Minister of Maldives. He is Abdullah Shahid. The next is World Food Programme. It is headed by David Beasley. Now see, India is providing humanitarian assistance by supplying 50,000 tons of wheat to Afghanistan through Jalalabad in Pakistan. That is land route. Now this is under the World Food Programme. So that's why this World Food Programme is very important. Second thing is that the World Food Programme is world's largest humanitarian assistance program, and it is headquartered in Rome. So that's why this body is very important for this year, and the Director General is David Beasley. Then International Labour Organization, which was established in 1919. Okay, so अभी इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो चेंज हुए हैं. सो द रिसेंट वेरी रिसेंट हु इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज गिलबर्ट एफ हाउंगबो. गिलबर्ट एफ हाउंगबो, दिस इज द न्यू अपॉइंटमेंट and hence becomes important for your exam. Okay, then UNESCO, which is headquartered at Paris, United Nations Scientific, Educational and Cultural Organization. इनकी जो डायरेक्टर जनरल हैं, she is Audrey Azoulay. Audrey Azoulay. Now friends, ये रहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब हम आगे चलते हैं. We will see कि इस साल बहुत सारे कंट्रीज़ के इम्पोर्टेंट पर्सनस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आए थे, बट कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भाई प्रेसिडेंट कौन था, फॉरेन मिनिस्टर कौन था, डिफेंस मिनिस्टर कौन था, उस कंट्री का चांसलर कौन था, वहाँ की प्रेसिडेंट कौन थी, हांगकांग का एडमिनिस्ट्रेटर कौन था. नॉर्मली हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, बट दिस नेम बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कभी कभी क्या होता है कि क्लैट में यू हैव अ पैसेज discussing India's relation with some country, and then instead of name you will find the blank space and you have to identify what will replace that thing in blank space. So normally वो नाम होता है, कभी कभी प्लेस का नाम होता है. Okay, so over here we have to remember this name quite discreetly कि ताकि हमें एग्जाम में बहुत जल्दी से ये चीज़ याद आ जाए. तो हम यहाँ पे important countries जो न्यूज़ में थे, we will discuss that. So we will start with China. सो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जी जिनपिंग, बट जो प्रीमियर है ये डिफरेंट होते हैं. प्रेसिडेंट अलग होता है, प्रीमियर अलग होता है. जो प्रेसिडेंट है ही इज जी जिनपिंग एंड द प्रीमियर इज ली केकियांग, जिन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है. सो ली केकियांग. द नेक्स्ट इज हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर, ये अभी इंडिया में भी थे पिछले वीक. द फॉरेन मिनिस्टर इज वांग यी. दिस इज अबाउट चाइना. देन कमिंग टू रशिया, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस. पहले मैं बता देता हूँ आपको कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ही इज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की. तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे. आप जब ज़ेलेंस्की नाम पढ़ेंगे तो यूक्रेन प्रेसिडेंट, अगर आप व्लादिमीर पुतिन नाम पढ़ेंगे देन ही इज़ द रशियन प्रेसिडेंट. देन न्यूज़ में प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में नहीं होते हैं. ओके, बट उनका भी नाम कभी कभी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में. सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया इज मिखाइल मिशुस्तिन. मिखाइल मिशुस्तिन. उसके बाद रशिया के साथ अभी अभी हमारा 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ था 2021 में. 2+2 डायलॉग में क्या होता है कि दो कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दे मीट. एज ऑफ टुडे इंडिया का 2+2 मीटिंग जो चल रहा है अभी यूएस के साथ. So the first 2+2 dialogue with Russia started in 2021. So
फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, ही इज सर्गेई लैवरोव एंड द डिफेंस मिनिस्टर इज सर्गेई शोइगु, सर्गेई शोइगु। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईरान। ईरान न्यूक्लियर डील चल ही रहा है, ठीक है, फाइन। सो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन करेंगे। ईरान में दो चीज़ें डिस्टिंक्ट होती हैं, जैसे चाइना में हमने देखा ना प्रेसिडेंट और प्रीमियर, वैसे यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। एक होता है सुप्रीम लीडर, जिसको आप फिलोसफर की तरह समझ सकते हो, फिलोसफर एंड गाइड, और एक होता है प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होके आते हैं। सो द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इज अली खमेनी, बट प्रेसिडेंट इज इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी, ठीक है। अब फॉरेन मिनिस्टर कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील। जो फॉरेन मिनिस्टर है ही इज हुसैन अमीर अब्दुल्लाहन, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहन। द नेक्स्ट इज इजराइल। अब इजराइल की तरफ चलते हैं। इजराइल में भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है। ओके, सो द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल इज इसैक हर्जोग, ये भी रिसेंटली फिर से इलेक्ट होके आए हैं, इसैक हर्जोग। फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है, नफ्ताली बेनेट, द प्राइम मिनिस्टर इज नफ्ताली बेनेट। देन फॉरेन मिनिस्टर कौन है, यार लैपिड, फॉरेन मिनिस्टर इज यार लैपिड, ठीक है। अभी फॉरेन मिनिस्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी अभी नया क्वाड बना है विच इज़ कॉल्ड एस न्यू इकोनॉमिक क्वाड, जिसके मेंबर हैं यूएई, इजराइल, यूएसए एंड इंडिया, फाइन। सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजराइल बिकम्स important. There was Abraham Accord signed between Israel and UAE in 2020, which has normalized the relations between Israel and UAE. The next is who is Chancellor of Germany. So the name is Olaf Scholz. So earlier the Chancellor was Angela Merkel. Okay, and now she did not run for election this time, and in his place is Olaf Scholz. He is from Social Democratic Party. The next is the Olaf Scholz is leading a traffic coalition, ठीक है ना, green, saffron and green, amber and red coalition. Okay, so he is running a coalition government led जिसमें इनका पार्टी है, then there is a green party and then there is a liberal party. The next is Taiwan president. Who is Taiwan president? The name is Tsai Ing-wen. Then who is prime minister of Nepal, who was recently who has visited India? So Sher Bahadur Deuba. Then who is the Hong Kong administrator? Carrie Lam. She is the Hong Kong administrator. The next is important places which you are going to remember, जहाँ पे important summits हुए थे. So you will remember Rome, Italy. Why? Because the 16th G20 summit was held over here. The theme of 16th G20 summit was people, planet, prosperity. Okay, G20 से रिलेटेड इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है that who was G20 Sherpa. So the G20 Sherpa was Piyush Goyal. Then you will remember Glasgow in UK. Why Glasgow? Because COP26 was held, Conference of Party 26. Then Pochampalli in Telangana. It was declared as best tourism village in India by World Tourism Organization. Then Kakatiya Rudreshwara Temple, which is in Telangana. It was declared as 39th UNESCO World Heritage Site in India. Then Dholavira in Gujarat. Why? Because it was declared as 40th World Heritage Site by UNESCO. Then the next name is Zaporizhzhia. Okay, it is Europe's largest nuclear plant. It was in news because of ongoing Russia-Ukraine crisis. Then Srinagar. Srinagar has recently been declared as 6th city from India, which has been included in the Creative Cities Network of UNESCO. Then Cornwall, UK. Here G7 summit was held in 2021. The theme was Build Back Better. The next is Vienna in Austria. Here Iran nuclear deal, revival of Iran nuclear deal is taking place, and the Iranian negotiator is Ali Bagheri Kani. Then Kevadia in Gujarat. Here is located Statue of Unity, which is the world's tallest monument of 182 meter height.
The next you will remember is Statue of Equality, which is in Hyderabad in Telangana, which was recently unveiled by our Prime Minister, and it is dedicated to medieval Bhakti saint Ramanujacharya. Then Kolkata, why? Because Durga Puja of Kolkata was included in the UNESCO's Intangible Heritage List. Then Lamheta in Madhya Pradesh along the banks of river Narmada, it has been declared as India's first geopark by Geological Survey of India. Then Gauteng in South Africa. Why? Because the first Omicron case was reported from Gauteng to WHO on 24th November. The next is important days which you will not forget for your CLAT 2022. The first is August 14th. On this day, it has been declared as Partition Horrors Remembrance Day in India. Then August 29th, it is National Sports Day, and birth anniversary of Major Dhyan Chand is on this day. Then November 16th, it is celebrated as Audit Divas. November 15th has been declared as Janjatiya Gaurav Divas. March 15th was International Day of Islamophobia. Recently, the United Nations General Assembly has adopted a resolution declaring March 15th as International Day of Islamophobia. Then 2nd February, World Wetlands Day. The theme was Wetland Action for People and Nature. Then March 22nd, World Water Day. The theme was Groundwater, Making the Invisible Visible. फिर 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे. The theme was Safe Food Now for Healthy Tomorrow. 8th March, that is International Women's Day. The theme was Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow. Then 15th August 2021, why you will remember this? Because on this day Taliban captured Kabul. Then 24th February 2022, when Russia invaded Ukraine. Then 23rd January, Parakram Divas, birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Then 16th September, it has been declared as International Day for the Preservation of Ozone Layer. And 1st October is celebrated as National Day of People's Republic of China. This is the day when China started sending its fighter jet and violating the Air Identification Defense Zone of Taiwan. Then 10th October, it is the National Day of Taiwan. National Day of Taiwan. Okay. The mainland China is called as People's Republic of China, and Taiwan is called as Republic of China. So friends, hope you must have liked this video. For more videos from Manu Law classes related to English, legal aptitude, reasoning and quant, you can follow us by subscribing to our YouTube channel, Telegram channel, Facebook and Instagram. The description of all these four, you can find it in our description box. Thank you friends, and best of luck for your CLAT exams.